سلام دوستان مهروانا من ایسا خاموش اندوجا گنشته و شدرا سلامت باته امروز بهارم باته گمگڑتی مگنداته دوستان مرسی مشورا برای یک دیوان یک مراگشیه که این دیوان یک جوان تاکار صافی انکر پرسن نمیران مصورلی بلوچ یا تا برجمدارک دوگا ہیں یہ دیوان برجمداروک بلوچ تحریک روس البلاد کراچی اور نوبل اکیڈمی انہیں مگا چھ برجمدارک دوگا ہیں بیایت مشورائی دیوانہ بریں ہو وما وجہ کے مصورلی بلوچ باروا گا پتران کنن آہنی گا پترانا شمارا اوشتانا انہوں نے جب وہ ویسٹ ٹی وی میں ہوتے تھے جب وہ میرے گھر آئے تھے تو انٹرویو کیا اس کے بعد میری اہلیہ کو جا کے سلام کیا تو مجھ سے کہنے لگا یار مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں بھابھی کا ہوں تو میں نے کہا ہم یہاں جاوید ایریا میں رہتے ہیں یہاں سندھی لوگ جو ہے میری بیوی کو ادھی کہتے ہیں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد مسفر نے بھی ادھی کہنا شروع کر دیا تو میری ایک طرف وہ فیملی میں 2 دفعہ ہمارے گھر 2-3 دفعہ آئے اور ہمیشہ بہت اچھی طرح ان کا جو انداز ہوتا تھا اتنا مشفقانہ اور اتنا مطلب دوستانہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسا بھی ہوا کہ ہم ایک جگہ دعوت میں تھے 10 پیشے تھے اوپر بیٹھے تھے مصور نے مجھے بلایا نیچے کیا آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کرنے. جب میں نیچے اترا تو انہوں نے میرے جوتے نکال کے باہر رکھے مجھے میں نے کہا مصور جی آپ کیا کر رہے ہیں تو لیکن ان کے چہرے میں تو پیچھے آپ تصویریں دیکھیں بس دل سے ایک مسکراہٹ ہوا کرتی تھی آپ سب بھول جاتے تھے. تو ہم نے ایک پروگرام میں وہ کہنے لگے کہ مجھے ادھی کا انٹرویو کرنا ہے. میں نے کہا کوئی انٹرویو نہیں دے گی تو میں نے مصور سے بات کرائی تو میری اہلیہ نے ان سے کہا بیٹا دیکھو میں مرد اینکر کو انٹرویو نہیں دیتی تو انہوں نے شہزاد بخش سے کہہ کے اور لیڈی مطلب لڑکی تھی اینکر اسے انٹرویو کرایا. اس نے کہا بس میں نے ان کو بڑی بہن کہا تو ان کو بڑی بہن نہیں سمجھوں گا تو آخر تک سمجھتے رہے. کمال کی ان کے اندر ایک ایسی خوبی تھی انکساری کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور انہوں نے ہمیشہ جس آپ لوگوں نے سنا کہ کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کسی بھی زمرے میں تعصب. اسحاق خاموش صاحب ہیں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آ کر چند مختصر جو ہے خیالات مصور علی کے بارے میں ہمیں بتائیں. ای دیوان کے مرسی پرسی دیوان جانے لگتا مصور لیے یاتا اصلا مصورہ کو منی پجارو کی باز دیا چھے نہیں بلے لہتے مردم انچش بن کے گوشے چھو گوات شکا کے وڑا کھائن طرح ہمیں گوات وشے گوات کے لکی طرح یہ ہمیں کیفیت ہمیں دمانی ساحت اس پر مطلب یہ تو شمشت کچھ نہ کنے بھی اور کچھ نہ کنے منی کو ماہوں مصور گپتران یا ملاقات جتا جتا پروگرام آنی تا آج کے کراچی آدھا مراکش بان دیوان با تو چوشی بعض کم پروگرام ہوتا کہ وہ دا من مصور نریستا آئیے ہوتی حاضری ضرور آدمی پروگرامی ہوتا آرٹس کونسل دیوان ہوتا گا یا دا لیالیتوں کا یہ دیوان ہوتا گا ادا فیس بک کا جو مصور گئے کجا آچی علی سیادیے کجا آچی اتکا بلے میرا دوست ہوتا ہے واسطہ کہ مردمی آپ پوری چھاگر دا گواسی نہ لوچی یہ چھاگر تچک آئیں روگ آئیں امک لوچی زندہ تہا مردم ہوتی کارام دستگٹ تھے وہ ای مردموں میں گھنٹا کجام نہ کجام جاگے یا کچھ چھاگر دے رندہ کرتا کہ چھاگر منا چھے مگوسی من چھاگر دا بگوازے آپ شہر نمگا میں بھی یہ درشان کتار ہوتی اردو شاعری کے یہ فیس بک کے سرہ یہ وارد سرواز ہوتا شیئر کتار یا میڈیا تو کا کیا یہ کھیرد مطلق کہ ابھی سور پورے اصلا بنی چین کے ہم چاہ میتا کو کچھ گا چھے کھلگا چھے درد کے کو اتکا گئے مردمی شہارتوں کا رشتہ کامریڈ وائد زی ہوئے دیگے دوستانی منت و مہربانی کیا ہمارا میرے داتا بعضی چیزاں میں مشتاق کو سرپدی داتا نمائی شہارتوں کا وطا اچھوشت گروہ شہارے رکھا ہے یا کی
वो दराची आओ की मर्दों में कहते हैं शहर तो का आवता शहर रंगा आवाज हुआ या वता हमारा फिट करा ये ग्रान भी आसानी खारे नहीं भले मुसाविर के मत इसलिए मन सरपंच होते हैं कि मुसाविर हमें दे लियारी चुकी हमें दे ये पैदाशी हमें दे निंदों के मर्दों में हमें दे मर्दों मांगो ये उतौरी आइए दरामदी में इस पर नमारत कर यक रोचे व्हाट्सएप मना एक शेर इरादात एक गुलकार है जने ने गुलकार है शेर मुशिगाने सोत मुशिगाने चूँकि मुसावरा ज़ाता के माँ बलूची म्यूज़िक प्रोमोटर सोसाइटी वाला में एक ऑर्गेनाइजेशन के माँ म्यूज़िक की सारा बलूची म्यूज़िक की सारा कार कर गए बलूची म्यूज़िक के प्रोमोशन है सारा और गुशिंदहानी दिलबड्डी हमारी कुजाम जागी या ना नरसंग को जोत करें कि वह सर पे करें बड़ा मुसावरा में सौत के मना रात का चूँकि मानवत मौसीकी साज़े मर शेदाई पदाई शायर जिनकी मुश्किलें बलूची मुश्किलें तो सकबाज किससे वश मुश्किलें जो शिक्किने कवारे बड़ा मुसावरा मना मुश्किल पंजाब एक जिनकी मुशी मनी वाहनी के शुमा ये तुमो दिलबड्डी बिकने और माँ की स्टेशन मज़ीद रिकॉर्ड करने बोलते मन मुसावरा मुश्किल तो चूँ पंजाब जिनकी बलूची तो शरक इस्तेमाल की थी तो मनी जिंदे तालुक से आदि चार पंजाब आए पंजाब आते हैं हमारा मुझे मजा आता कि मुसाविर पंजाब से आते हैं मर्दों में बड़े आइए इस पर किसने दरामदी आइए मन हमारा अंशुष मतलब बलूची दीवाना तो का पूरा हमें दे बलूची बड़ा अच्छी बात है पद आइया मना मुश्किल में सरकार का ना और भले अनागति फेसबुक का एक रुचि मदीस के मुसाविर वाले सलाह के आइया जगह ना दो आइया ने आवाज़ और हंचो व्हाट्सएप वाले सरा ये गुम हाले वाल भी आलपुरसी भी फेसबुक का वादी के वाले सरा चीज़ें था ये गुम हाले वाल भी भले एक चीज़ मना मुसाविर सकबाज आइए मारा महसूस करा वो वादी के मुसाविर के मार के हालत मान के इसने दुबैया था आइए जिंदे व्हाट्सएप नंबर आचे आइए जिंदे नंबर आचे मना खालत मैसेज के मुसाविर अली बीरान यकीन से ईसा आता हूँ मनांगता यकीन वो है मैं मना बाबरी साहब उसने क्या ये नंबर ये ब्राता गुने हुआ वो थी संगता ने तो कांटेक्ट है नो हमारे पास के मैं शेयर करना लोटा मुसाविर के चिता चीज़ों तो गंबेटेस पिताला बड़ा आ वो थी चीज़ां शेयर करना नत वो थी ब्राता ने गुमा ब्राज़त का ने गुमा वो थी फोटोआं वो थी वीडियोआं शेयर करना नत या कुछ ये शेयर करता कि डॉक्टर जवाब दाता और मनी किसने जगह लोग किसने ना खारा भले गप्पा अंचो बहादुरी गोमा कुछ कहा कि मर्दों बड़ा मरगा से परचा बतुर्सी वाकई मुसाविरा से मरगा न तो सदी एक बहादुर साफी बहादुर इंसानी बहादुर शायर वो मन बाज शौक पुत्र बाज सख्त दर्द बुता बना कि एक कीवड़ी मेहरबान इंसानी के छागर दे तो का वो कंट्रीब्यूशन आवार करने लगे हर जगह पर होता दोस्त संगत रात तरबीयत कुर्बानी आज़े जग इंसानी ये छागर दे तो का मैं दूसरी खबर करता मुझे से पटेल से मुसाविर पटेल से बड़ी पिता और दुनिया से रोशनी मना पूरा उसका मुनामुर सामने आते हैं निकला किसी के इंस्ट्रूमेंट है मुझे इंस्ट्रूमेंट परामर्श होता मैंने जुबान मना इजाज़त ना कि मामती इंस्ट्रूमेंट किया बाल मशी मर्दिया बाल गुर्दानी मर्दिया बच्चे भूषा ये बारे आई बरातर जो ख्याल आते ज़ाहिर का ज़ाहिर था और ख़ास कर उन्हें खामोश साहब जो डॉक्टर ये बारे बाल बेहतरीन तरीके से खूबसूरत अंदाज़ा खूबसूरत तरीके से और वाकई में वाजा हमें मिलता आइए जो से मरमान उन्हें दूसरी और कुर्बत आइए होती ये शायद था हर वक्त दोस्त बराबर नहीं उन्हें मिलता था आइए लियारी मसाइल अनोखे उजागर खुदा आइए हर मामले का भरोसानी आइए ज़ाहिर खुदा दो चीज़ें जो से खबरदारी आइए पिता बाकी हंसों के साथ लोगों की दूसरे मिलने मिलता पंजाब की मैच का अंदर लियारी वर्दी का बलूची का बलूची का और आइए
सख्त दर्द पे गुजरता हूँ। मैं जो उससे बस ये 12 लिखी थी, मैं मुशायरा भी 12 लिखता आया। अल्लाह आई है हेपेटाइटिस मरीज को आई है जो से अल्लाह होती माल को अल्लाह आई है जो से जवान रहमत जागा अल्लाह ये और रसाना से जो करना चाहते हैं, यादें बहुत सारे हैं और बातें भी बहुत सारे हैं। मुझे याद है कि जब मुताहिर साहब मुसव्वर अली साहब जब पंजाब से आए थे तो इसी लियारी में उन्होंने सुपरीत इख्तियार की। वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे कोई नहीं जानता है। एक दफ़ा उन्होंने मेरे PTV में कुछ प्रोग्राम देखे थे, फिर सब्ज़बाग बलूचिस्तान में, फिर वश में, तो वो मुझे मिलना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। तो किसी से नंबर लिया तो मुझे कॉल किया, तो यकीन माने मैं नहीं चाहता था कि इस बंदे से मिलूं। मैं नहीं जानता था कहाँ से आया है, कौन है, क्योंकि हालात बलूचों के लिए और बलूचिस्तान के लिए कुछ इस तरह मुनासिब नहीं थे। तो ख़ासकर पंजाब का जब जिक्र होता है तो थोड़ा सा एक खिंचाव होता है, हम कहते कि नहीं। लेकिन बहरहाल वक्त गुजरता गया। मुसव्वर अली ने जब मुलाकात की तो मुझे कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, करना चाहिए। किस हवाले से? कहते कि जब मैं पंजाब में रहता हूँ तो वहाँ पे हमसे जब बात करते हैं तो हम फ़ख्र से कहते हैं जी हम बलोच हैं। तो उस चीज़ को साबित करने के लिए मैं यहाँ पर इस अपनी कम्युनिटी के साथ रहकर कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर कुछ करना चाहते हो तो सबसे बेहतर है कि तालीम को अपना लो, इस फील्ड में काम करो। तो मुझे कहा कि बेशक बिल्कुल मैं करूँगा। तो मैंने उसको ऑफ़र की कि नोबल एकेडमी एक इदारा है, आप यहाँ पे हमें ज्वाइन करें और यहाँ पे काम करें। तो जब उनको विज़िट करवाया गया तो बड़ा खुश हुआ, कहा कि यही रास्ता है लोगों की खिदमत करने का। तो वहाँ से आज से 12 साल पहले मुसव्वर अली साहब हमसे जुड़ गया। लेकिन जिस तरह इसा खामोश ने कहा, जिस तरह जमीन भाई ने कहा और दूसरे दोस्तों ने कि वो कभी गिला शिकवा नहीं करता था। तमाम मसाइब के बावजूद वो ये नहीं कहता था कि दूसरे लोग पैसे वाले हैं, माल और दौलत वाले हैं और हम इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ। किस हवाले से? क्योंकि उसके अंदर इंसानियत थी। इंसानों को वो इंसान समझता था, चाहे वो किसी भी ज़ुबान बोलने वाला हो या किसी भी मख्तलिफ फ़िक्र से ताल्लुक़ हो। वो कभी भी कोई मुतनाज़ा बात नहीं करता था। मैं कभी कभार उससे बहस मुबाहिसे में लगता था, क्योंकि हम जब नोबल एकेडमी में अपने बैठ के गुफ्तगू करते थे फ़ारग औकात में, तो वो हमेशा मुझे यही कहता था, बाबरी साहब देखिए इंसान कोई भी क्राइम माँ की पेट से क्राइमिनल पैदा नहीं हुआ था। अगर लियारी में ये मामला थे तो इन्हें हमें ठीक करना है। तो मैंने कहा भाई कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि जी आप देख लें, आप मुसलसल जद्द मुसलसल या जोहद मुसलसल करते रहें तो एक ऐसा दौर आएगा तो लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे। जब हद से जुल्म गुजर गया तो हम सब मिलकर, कुछ NGOs थे, कुछ दोस्त स्कूल के हवाले से, BM दानिश और बाकी दोस्त अभी बसान, बहुत सारे दोस्त, उन्होंने कहा कि कुछ करना है। तो हम लोग प्रेस क्लब गए, तो वहाँ मुसव्वर साहब ने तकरीर की। तो उस तकरीर से लोग जानने लगे कि ये कुछ बोलता है, कुछ सुनता है, कुछ समझता है। तो इंसान जब समझने लगा, इश्यूज़ को मानने लगा, तो यकीन माने तो वो मसाइल हल की तरफ जाते हैं। तो मुसव्वर अली ने अपने लिए ज़िंदगी नहीं गुजारी, अपने लोगों के लिए गुजारी। वो इतना बहादुर था, जब मैं जिना में उनके साथ, जब गंबट में हमने उसको भेजा, जब उसके घर पे जाते थे, शबीर साहब यहाँ खड़े हुए, वो हमेशा ये कहता था कि भाई क्या हुआ, मरना तो है, आज नहीं तो कल। वो ज़िंदगी जो जी
जिया, मर्दों की तरह, शेरों की तरह जिया और मौत को भी मर्दों की तरह गले लगाया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि इंसान जितनी देर तक ज़िंदगी कर रहा है, रहता है, वो किसी से नफ़रत ना करे, किसी को कमतर ना महसूस करे। तो यही चीज़ है कि शेख सादी कहते हैं कि बनी आदम आज़ाई एक दिगरन से आफरीनश एक गोहरन जो उज़्वी बिदत आरत रोज़गार दिगर रोज़वाना नमानत करार। जब इंसान यही समझता है कि मैं एक इंसान की आज़ाओं की मानंद है, ये हदीस भी है, जब एक हिस्से को तकलीफ़ होता है जिस्म की, तो पूरे जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी तकलीफ़ महसूस होता है। तो एक दफ़ा मुझे मुसव्वर कहता है कि मैं जब लोगों से बलोची में बोलता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं तुम बलोच नहीं हो, तुमने कुछ बलोची अल्फाज सीखे हैं। तो मैंने कहा तो इससे तुम्हें क्या महसूस होता है? तो बलोची ज़ुबान ऐसा बेहतर जानते हैं कि इससे मुख्तलिफ डायलेक्ट हैं, रक्षानी है, कोई सलेमानी है, मकरानी है या मकरानी हम कहते हैं। ये खूबसूरती ज़ुबान की है। तो मुसव्वर साहब अगर ये इस लहजे में जब बात करते हैं उसमें थोड़े से असरात पंजाबी के हैं, तो आपने बड़ी फ़ख्र ये कि पंजाब में रहते हुए अपनी ज़ुबान को, अपनी उस मादरी ज़ुबान को तुमने ख़त्म नहीं किया। हत्ता कि वो कल्चर जो वो अपनाते हैं, बलोच कल्चर को, जिस तरह मैं रमज़ान साहब से कह रहा था कि अभी भी पंजाब में लोग बलोच कौरगान करते हैं, अपनी शादियों के वो रस्म जो कि तुरबत केच मकरान में होते हैं वही करते हैं। तो ये है इंसान की पहचान, क्योंकि जो इंसान अपने मादरी ज़ुबान से मोहब्बत करता है, अपने लोगों से मोहब्बत करता है, अपने उन गरीबों से मोहब्बत करता है, वो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मुझे यकीन है कि मुसव्वर के जो भाई यहाँ मौजूद हैं, उनके बेटे यहाँ पर हैं, तो हमने हमेशा उनको अपने भाई और अपने औलाद समझे हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा है मुसव्वर के ज़माने में भी कि आपके बच्चे जब तक नौबत में पढ़ते हैं उनका कोई फ़ीस या कोई हम मुआवजा नहीं लेंगे। इवन के अगर वो यूनिवर्सिटी तक गए तो नोबल की जिम्मेदारी उनकी तालीम को जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाए। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल अजीज अस्कानी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो बहुत ही मुख्तसर जो है अल्फाज में कुछ मुसव्वर साहब के बारे में बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसव्वर अली एक अच्छे दोस्त थे, एक अच्छे रहनुमा थे और नौजवानों के एक अच्छे साथी थे। उनका ज़िया इतनी जल्दी और इस कम उम्री में हमारे लिए अफसरदगी का बास है, गम और दुख का बास है। और हम इतने करीब थे कि ये आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी किताब यादों की दुनिया, जब हमने उसके इजरा की तैयारी की और ये तय पाया कि रीडिंग्स क्लब में उसकी इजरा होगी, तो मैंने मुसव्वर से कहा, मुसव्वर भाई मेरी किताब यादों की दुनिया की इजरा है, तो आप मत आएँ, आपकी तबीयत सही नहीं है, तो मैं खुद अपनी किताब आपको ला के दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मुझे आना है, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं इस दोस्ती को बरकरार रखना चाहता हूँ और मेरी तबीयत इतनी वो भी नहीं है। हालांकि वो तकरीबन मुकम्मल से वापस आ चुके थे और उम्मीद और हौसला उनका बुलंद था। डॉक्टरों ने उसको जवाब दिया था लेकिन उनका उम्मीद और हौसला बुलंद था। तो मेरी शहजाद भट्ट साहब से बात हुई सच न्यूज़ के, तो शहजाद भट्ट ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको अपनी गाड़ी में ले आऊँगा सर। तो उस दिन वो आए और तकरीबन 2 घंटे तक मेरे साथ रहे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मुसव्वर साहब आपकी ज़िंदगी खैर मुताबिक रहे, लेकिन 4-5 दिन वो जिंदा है और अल्लाह को प्यारे हो गए। ये ज़िंदगी मेरे लिए थी उनकी, उन्होंने मुझे साथ दिया और आए मेरी तकलीफ में
मैं उनका बहुत मिन्नतवार हूँ और मेरी दुआ है हमेशा मेरे नफलों में उनको याद करता रहता हूँ और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला उनके बच्चों को उनके अहले खाना को सब्र दे और मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो रुला देने वाले थे लेकिन हम जब्त कर गए। मैं मुसव्विर के बारे में बहुत बात कर सकता हूँ लेकिन मैं ये कहूँगा जो इंसानियत की खिदमत करते हैं वो कभी नहीं मरते और मुसव्विर हमारे दरमियान है, हमारे दिलों में है और रहेगा। मुसव्विर से मेरी शनासाई बहुत अरसे से है, नई नहीं है, बहुत पुरानी है। उसने मेरे काफ़ी इंटरव्यू किए हैं और उसकी और मेरी जो दोस्ती या वो जो शफकत मुझे उनसे मिला। मैं चूँकि बड़ा हूँ तो मैंने देखा कि वो लोगों के साथ मुलाकात के बाद डायरेक्ट उसके दिल में जाके बैठ जाते हैं। ये याद है एक तकरीब में, बहुत पुरानी बात है, वफा के रास्ते पे चल के जो साथी बनाता है उसे ही हम सफ़र रस्ते में अक्सर फेंक देते हैं, उसे ही हम सफ़र रस्ते में अक्सर फेंक देते हैं। तो जो कि मनफी सोच को आला ज़र्फ़ अंदर नहीं रखते, कि मनफी सोच को आला ज़र्फ़ अंदर नहीं रखते, हम मुर्दा लाश को बाहर समंदर फेंक देते हैं। हाँ, मुर्दा लाश को बाहर समंदर फेंक देते हैं। तो जो कहीं पे पेट भरने के लिए भी जान की बाज़ी। ये एक जुमला बड़ी कहानी इसमें है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें। कहीं पे पेट भरने के लिए, कहीं पे पेट भरने के लिए भी जान की बाज़ी, कहीं रोटी के टुकड़े थाल भर भर फेंक देते हैं, कहीं रोटी के टुकड़े थाल भर भर फेंक देते हैं। मक्ता तू वो तहरीर है शायर जिसे मरोड़ के अक्सर, तू वो तहरीर है शायर जिसे